ठीक है, तो आइए আসো গড ম্যারেজ অ্যান্ড ফ্যামিলি নামক পুস্তকের যে বুক স্টাডি আমরা করছিলাম চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেটিকে কন্টিনিউ করি এবং মুখ্যভাবে আমরা चैप्टर 2 টিকে দেখছিলাম। इस पुस्तक का अध्याय 2 को देखना हम आरंभ कर चुके थे, जो चैप्टर मुख्य रूप से लिविंग और क्लीविंग के विषय में है। चैप्टर 2 लिविंग और क्लीविंग মানে হচ্ছে ছাড়া এবং এক হওয়া। एवं मुख्यभावे তিনি लेखक जो है उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर 3 में से वो 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हैं। तीनटे गुरुत्वपूर्ण শেখার বিষয় অবজারভেশনটিকে তিনি সামনে তুলে ধরেন। তার মধ্যে প্রথম দুটিকে আমরা লাস্ট টাইম অলরেডি দেখেছিলাম। প্রথম দুটির মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে যে মানুষকে ঈশ্বর তার নিজের প্রতিরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। ईश्वर परमेश्वर ने उनके अपने स्वरूप में नर और नारी को सृष्टि किए थे। तार मानेटा की जेनो कि मानुष ताकि मनुष्य परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर के अधीन में रहते हुए एक प्रतिनिधि के तौर पर पृथ्वी के तमाम जो परमेश्वर की सृष्टि है उनका देखभाल करे। इस विषय को हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि पुरुष का नर का जो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार विवाह को लेकर, और उसके पत्नी का जो भूमिका है सुइटेबल हेल्पर उपयुक्त सहायक के रूप में, इस विषय को भी हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखे हैं। एवं इधर संक्षेप इस दूसरा विषय का जो संक्षेप लास्ट का जो कंक्लूजन है उसको हम लोगों ने कंप्यूटर स्लाइड के द्वारा भी देखे थे। वो कंप्यूटर स्लाइड में वो रेकर्ड है कल के আমরা এটা দেখেছিলাম লাস্টটা কম্পিউটার স্লাইডে সেটা রয়েছে। এবং আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি আদি পুস্তক অধ্যায় 1 থেকে 3 এর মধ্যে যে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শেখার বিষয় যেটি লেখক এখানে উল্লেখ করেন সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের পতনের পরিণামস্বরূপ কি ঘটে, यानी দ্য ফল অফ হিউম্যানিটি এন্ড ইটস কনসিকুয়েন্সেস। যখন মানুষ পাপে পড়ে, যখন মানুষ পতনে পড়ে, তার প্রভাবটা তার পরিণামস্বরূপ কি ঘটে, उसका क्या अंजाम घटते हैं, उस विषय में लेखक यहाँ पे उल्लेख करते हैं, विशेष रूप से नर और नारी दोनों के जीवनों में। एवं लेखक बोलें the fall witnesses a complete reversal of the roles assigned by God to the man and the woman। পতনের পরিণামস্বরূপ কি ঘটে, লেখক বলেন যে রোলগুলো যে রয়েছে, ঈশ্বর যে রোল দিয়েছিল, ঈশ্বর পুরুষকে এবং নারীকে ম্যান এবং ওমেনকে যে ঈশ্বর যে রোলগুলো দিয়েছিল, এখানে কমপ্লিট রিভার্সালটিকে আমরা দেখতে পাই। পতনের পরিণামস্বরূপ কমপ্লিট রিভার্সাল। রিভার্সাল তার মানে রিভার্সাল মানে হচ্ছে যে যেদিকে যাওয়ার ছিল ঠিক সেটা উল্টা বা বিপরীত হয়ে গেছে। রিভার্সালটিকে আমরা দেখতে পাই। কি বিষয় রিভার্সাল? পুরুষ এবং নারীকে ঈশ্বর যে দায়িত্বটা দিয়েছিল, যে রোল আর ভূমিকাটা ঈশ্বর দিয়েছিলেন তার সৃষ্টির ক্রমের অনুসারে, সেটা কমপ্লিট রিভার্সাল, আদলা বদলি বা সেটা কমপ্লিট ইউটার্নটিকে আমরা দেখতে পারি পুরুষ এবং নারীর জীবনে। Rather than God being in charge with the man helped by the woman ruling creation for him, a complete reversal takes place। লেখক বলছেন যে হওয়া এটা উচিত ছিল যে ঈশ্বর কর্তৃত্বতে রয়েছে, চার্জে রয়েছে, এবং পুরুষ যে রয়েছে যাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে তার স্ত্রীর সাহায্যে, তার স্ত্রীর সুইটেবল হেল্পারের সাহায্যে, এইভাবে ঈশ্বর চার্জে এবং স্বামী এবং স্ত্রী অ্যাজ এ সুইটেবল হেল্পারের সাহায্যে তারা পৃথিবীটাকে রুল করছে। এটা হওয়ার ছিল, কিন্তু এটা হওয়ার বিপরীত আমরা দেখতে পারি যে কমপ্লিট রিভার্স ঘটে যাচ্ছে। মানে সম্পূর্ণরূপে यहाँ पे रिवर्सल घट रहा है। रिवर्सल मतलब जिस प्रकार से होना चाहिए था, भूमिकाओं को जिस प्रकार से निभाना चाहिए था, वो उल्टा हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि शैतान इन द फॉर्म ऑफ ए सर्पेंट, सांपेर रूपे अप्रोचेस द वुमन। वो महिला के पास आते हैं, महिला को अप्रोच करते हैं, हु ड्रॉज द मैन विथ हर इनटू रिबेलियन अगेंस्ट द क्रिएटर। क्या होते हैं फिर? वो महिला पुरुष को भी अपने साथ जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध में रिबेल विद्रोह करने की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, तार माने এটা না যে ওমেন নারী যে রয়েছে
সে পুরুষ থেকে অধিক কমজোর রয়েছে, মানে প্রলোভনের ক্ষেত্রে, এটা মানে এটা না। এটা মানে এটা না যে নারী খুব সহজে প্রলোভনে পড়ে যায়, মানেটা ওটা না। কারণ এটা সত্যি যে মহিলা প্রথমে ছলিত হয়েছে, তার মানে এখান থেকে আমরা যেন কবেও এটা না ভাবি যে মহিলা তাড়াতাড়ি ছলে পড়ে যায়। এখান থেকে কোথাও এখানে আদি পুস্তকে এটা বলা হয় নাই যে নারী আগে ছলিত হয়েছে বলে পুরুষ থেকে নারী দুর্বল রয়েছে, মানে প্রলোভনে পড়ার ক্ষেত্রে এটা কোথাও বলা হয় না, এটা এখানে ইমপ্লাই করা হয় না। কিন্তু এখান থেকে আমরা এই इंडिकेशनটা पाए, यहाँ से हम इस इंडिकेशन को हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ से यह प्रदर्शित होता है कि however that God's plan for the man and the woman is to have the man, not the woman, assume ultimate responsibility for the couple। यहाँ से हमें यह प्रदर्शित होता है कि परमेश्वर के योजना के अनुसार, ईश्वरेर পরিকল্পনার অনুসারে যে পরিকল্পনাটা ঈশ্বরের রয়েছে নর এবং নারীর জন্য, ওইটা এই যে পরিবারকে নিয়ে যে আলটিমেট দায়িত্বটা রয়েছে, যে দায়বদ্ধতাটা রয়েছে, যে রেসপন্সিবিলিটিটা রয়েছে, আলটিমেট রেসপন্সিবিলিটি, সেটা হচ্ছে পুরুষের, নারীর নয়। ওই ইন্ডিকেশনটা আমরা এখান থেকে পাই, ওই ইঙ্গিতটা আমরা এখান থেকে পাই। वो सच्चाई यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है जब शैतान के प्रलोभन में आकर नारी नर को अपने साथ परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कराते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष से नारी बहुत जल्दी अधिक छलित हो जाते हैं या छल में गिरते हैं, वरन यहाँ से यह प्रदर्शित होते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार नर को वो निर्णायक जिम्मेदारी दिया गया है, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी नर को दिया गया है, नारी को नहीं। और वो जिम्मेदारी क्या है? लीडरशिप का, नेतृत्व करने का और प्रोटेक्शन का। মানে হচ্ছে সুরক্ষা প্রদান করা, নেতৃত্ব করা এবং সুরক্ষা প্রদান করা, বিশেষ করে তার স্ত্রীকে নেতৃত্ব করার দ্বারা স্ত্রীকে সুরক্ষা প্রদান করার বিষয়। অতএব লেখক বলেন, thus the man by his absence or at least acquiescence shares in the woman's culpability। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব পুরুষ যে নর ছিল, যে স্বামী এখানে ছিল, তার অনুপস্থিতিতে কিংবা নারী যে কাজটা করছিল তখন সাপের কথা শুনে সেটাতে সম্মতি দেওয়ার দ্বারা পুরুষও স্ত্রীর দোষে ও দোষপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রীর দোষে, স্ত্রীর যে কাজ, মানে স্ত্রী যখন ছলিত হচ্ছিল, সাপ যখন স্ত্রীকে প্রলোভিত করছিল, তখন হয় স্বামীর অনুপস্থিতিতে কিংবা স্বামীর সম্মতিতে, হওয়া যে ফলটা খেতে যাচ্ছে সাপের কথা শুনে, সেখানে যখন স্বামী হয়তো অনুপস্থিত ছিল বা সেখানে সে উপস্থিত ছিল কিন্তু সে কাজে সে সম্মতি দেওয়ার দ্বারা মহিলার যে দোষটা রয়েছে এখানে, সেখানে সে ভাগীদারি বা অংশীদারি হয়েছে। এবং সে মহিলা, সে ব্যর্থ কোন জায়গায় হয়েছে? ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া স্বামী যে ওর প্রোটেক্টর, যে ওর প্রোভাইডার, যে ওকে দেখাশোনা করবে, তার সাথে কনসাল্ট করার ব্যর্থতায়। তার মানে ফলটা খাওয়ার আগে যখন সাপ এসে ওকে প্রলোভিত করছিল, তখন কি করা উচিত ছিল? স্বামীর সাথে কনসাল্ট করা। যে স্বামীকে ঈশ্বর সে মহিলার জন্য এসে প্রোভাইডার আর প্রোটেক্টর, রক্ষা প্রদান করার জন্য এবং প্রাবধান প্রদান করার জন্য তাকে দিয়েছে স্বামীকে, এবং স্ত্রী তার সাথে কথাবার্তা বা কনসাল্ট, তার কাছ থেকে পরামর্শগুলি নেয় নাই, তার কাছে কনসাল্ট করে নাই। এই ব্যর্থতার কারণে কি হয়েছে? she fails to respect the divine pattern of marriage। সে ঈশ্বরের যে বিবাহের যে প্যাটার্ন, যে আদর্শ, সেটাকে সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইন দি এন্ড, এবং শেষের দিকে, it is the man not the woman who is primarily held responsible for the rebellious act। शेष में से पुरुष छिलो, वो नर था जो इस विद्रोह और पाप के लिए जवाबदेही और जिम्मेदार ठहराया गया, औरत नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ क्षण पहले लेखक ने बोला कि यहां से जब सांप छल कर रहा है,
जब नारी वो फल को खा रहा है छल में आकर, और पति को भी अपने साथ वो इस विद्रोह में ले जाते हैं, ड्रॉ करते हैं, वहां से ये प्रतीत नहीं होता है कि महिला लोग ज्यादा जल्दी छल में गिर जाते हैं, मर्द से ज्यादा कमजोर होते हैं, इसीलिए वो लोग प्रलोभन का क्षेत्र में जल्दी गिर जाते हैं। वो बातें वहां से इंप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन वहां से ये इंप्लाई हो रहा है कि निर्णायक जो जिम्मेदारी था परिवार को लेकर, निर्णायक जो जिम्मेदारी था इन दोनों के बीच में, वो नर का था। इसलिए शेष में से अंत में, यद्यपि महिला पहले छल में गिरी, बावजूद इसके अंत में आखिरकार इस विद्रोह और पाप के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार ठहरा वो पुरुष, नर। वो इसलिए क्योंकि नर को परमेश्वर ने वो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिए थे अपने परिवार को लेकर, अपने विवाह को लेकर। और लेखक आगे कहते हैं, though the consequences of the fall extend to the man and the woman alike, affecting their respective primary spheres. ये जो पतन का जो प्रभाव है, कंसिक्वेंस है, वो समान रूप से पुरुषের উপরও পড়ে এবং নারীর উপরেও পড়ে, এবং বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিগত প্রাইমারি যে রেসপেক্টিভ স্পিয়ার্স ক্ষেত্রগুলো রয়েছে সেখানেও সেটার প্রভাবটি পড়ে। ইন দ্য কেস অফ দ্য ওমেন, মহিলার ক্ষেত্রে সে ব্যথা বেদনা বিশেষ করে কখন? সন্তান প্রসব করার সময়, जब बच्चे को जन्म देने से पूर्व जो पीड़ा महिला को सहने पड़ते हैं, केवल उतना ही नहीं, लेकिन उनके पति के साथ जो संबंध उनका रहता है, उसमें भी, उस क्षेत्र में भी जो है पतन के परिणाम स्वरूप प्रभाव पड़े हैं। एक तो इसमें कि जब वो संतान को जन्म देने जा रही है उस वक्त पीड़ा का होना, फिजिकल पेन से होके गुजरेगी वो बच्चे को जन्म देने से पहले, ये वो कन्सिक्वेंस है पतन के परिणाम स्वरूप। এটা হচ্ছে একটা সেটার পরিণাম, কনসিকুয়েন্স। কেবল অতটাই নয়, কিন্তু তার স্বামীর সাথে যে সম্পর্কটা ছিল সে সম্পর্কের মধ্যেও পাপের যে কনসিকুয়েন্স গুলো রয়েছে সেটা দেখা দিতে যাচ্ছে। কিভাবে সে সম্পর্কতে? आदि पुस्तके আমরা সেটা দেখতে पाए, क्योंकि अब उनके पति के साथ जो प्रेममय संबंध और एक जो हार्मोनियस संबंध हुआ करता था, माने शांतिपूर्ण प्रेममय जो সম্পর্কটা ছিল সেটাও এখন ভেঙে যেতে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে পাপের পরিণাম স্বরূপ আসা অভিশাপ। যে যে প্রেমময় এবং শান্তিপূর্ণ যে পরিবেশ এবং সম্পর্কটা ছিল পতনের পূর্বে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে, সেটা ভাঙতে যাচ্ছে। কিভাবে ভাঙতে যাচ্ছে? জেনেসিস 3:16 আমরা দেখতে পাই। आदि पुस्तक अध्याय 3 पद 16 उत्पत्ति 3 अध्याय 16 पद में आप इसे देख पाएंगे। পরে তিনি নারীকে কহিলেন, परमेश्वर ने नारी से कहा, আমি তোমার गर्भ वेदना अतिशय वृद्धि करिब, संतान प्रसव करार समय जो गर्भ का वेदना है वो बढ़ेगा, जो कि पतन के पहले नहीं था। তুমি वेदनाते संतान प्रसव करिबे। उसके बाद देखिए, ये था उनका फिजिकल पेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। उसके बाद उनके पति के साथ जो संबंध है उसमें क्या होने जा रहा है, एवं स्वामीर प्रति तुम्हार वासना থাকিবে। पति के और तुम्हारा वासना माने तुम्हारा लालसा থাকিবে, और ये लालसा जो है ये प्रेम का लालसा नहीं, वरन पति का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स है, पति का जो दायित्व है उसको छीन लेने का लालसा, हेडशिप को छीन लेने का लालसा, लीडरशिप को छीन लेने का लालसा, ये वाला रहेगा। और उतना ही नहीं, आगे लिखा हुआ है, ओ शे यानी कि तुम्हारा पति তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে, তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে। তার মানে হচ্ছে जो लविंग और पीसफुल हार्मोनियस रिलेशनशिप हुआ करता था पतन से पूर्व पति और पत्नी के बीच में, इसमें दरार इस प्रकार से आएंगे कि पत्नी अब पति का जो पोजीशन है, पति का जो जिम्मेदारी है, पति का जो हेडशिप लीडरशिप है, वो रोल को प्राप्त करने के लिए वहां वो हेडशिप और लीडरशिप का जगह में बैठने के लिए वो लालसा करेंगे। क्योंकि ये लालसा शब्द कोई पॉजिटिव शब्द नहीं है, क्योंकि
यह जो है हमें याद रखना है। सबसे पहले ये लालसा शब्द इसलिए पॉजिटिव और लविंग लालसा वाला शब्द नहीं है, बिकॉज आगे चलकर जब हम चैप्टर 4 में देखेंगे, आप देख पाएंगे वहां पे कि कैन के लिए पाप भी उसी प्रकार से लालसा कर रहा है, मतलब दबोच लेने का जो लालसा है, किसी को अपने वश में करने का लालसा यह है। इसलिए ये लालसा शब्द जो है ये कोई पॉजिटिव लविंग रिलेशनशिप वाला वो लालसा नहीं है, बिकॉज ये शब्द आगे चलकर चैप्टर 4 में भी जिस प्रकार से यूज किया गया है, नेगेटिव लाइट में यूज किया गया। और दूसरा विषय यह है कि यह क्यों पॉजिटिव प्रेममय वाला लालसा का शब्द नहीं है, रोमांटिक रिलेशनशिप वाला जैसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन में लिखा हुआ है, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये अभिशाप का कॉन्टेक्स्ट है। यह अभिशाप दिया जा रहा है, संतान प्रसव का समय में पीड़ा का होना और पति की पोजीशन के लिए लालसा करना। और अब क्या होने जा रहा है, पतन से पूर्व जो प्रेममय रिलेशनशिप था, जो शांतिपूर्ण रिलेशनशिप था, उसमें क्या होने जा रहा है, अभिशाप का हिस्सा यह भी है कि उसका पति उसके ऊपर प्रभुता करने जा रहा है। और इस प्रकार का प्रभुता जो है यह भी पापमय प्रभुता है। और यही से होकर जो है हम देख पाते मेल चौविनिज्म और डोमिनेंस, जहां पे पुरुषे पापयुक्त तरीके से अनरीजनेबल मीन्स अपनाकर अपना पत्नियों को जो है अपना वश में करते आए हैं। इतिहास में जब हम देखते हैं हम इस सच्चाई को अनफोल्ड होते हुए देख पाते, जो कि पतन के पूर्व नहीं था। पतन के पूर्व के हेडशिप और सबमिशन एक म्यूचुअल लविंग रिलेशनशिप के अधीन में था, लेकिन अब यह अभिशाप के अधीन हो रहा है। लेकिन अब वैसा और नहीं रहा। और इस प्रकार का प्रभुता जो पति करने जा रहे हैं, जो अभिशाप का अंश है, वो है अनगॉडली मैनर में वो करने जा रहे हैं, माने भक्तिहीन भावे से এটা করতে যাচ্ছে, either passively forcing her into action or actively dominating her। এটা হচ্ছে অভিশাপের অংশ। The man in turn will henceforth, और ये तो था पत्नी के क्षेत्र में जो संबंध उसका पति के साथ है और जो पीड़ा को वो सहने जा रही है। और पुरुष के लिए देखिए यहाँ पे लेखक कहते हैं, जिस सच्चाई को हम उत्पत्ति अध्याय 3 में देख पाते हैं, The man in turn will henceforth have trouble in fulfilling God's command to subdue the earth। पृथ्वी में फले फूल और पृथ्वी को जो सबड्यू करने का, कर्तृत्व करने का जो जिम्मेदारी दिया गया था पुरुष को भी, उसमें भी अभी उसको संघर्ष करना पड़ेगा, है नहीं? उतना आसानी से उसको अब परिवार के लिए उपार्जन वो नहीं कर सकेगा। এখন বাড়ির জন্য উপার্জন করা, পরিবারের জন্য উপার্জন করা, বাড়িতে খাওয়া জুটিয়ে নিয়ে আনা কেন কঠিন হচ্ছে? ওইটাও অভিশাপের অংশ। সেরকম এখন সহজ হতে যাচ্ছে না কাজ করাটা, পরিবারের জন্য উপার্জন করাটা। কেননা যে ভূমিতে পূর্বে পতনের পূর্বে কাটা বন জঙ্গল উগতো না, সেটা এখন উগা শুরু হবে। তার আগে ছিল না কাটা বন জঙ্গल, उट कटारे पहले नहीं उगते थे पतन से पूर्व, लेकिन अब उट कटारे एंड ऑल दोस थिंग्स बिकॉज ऑफ विच पीपल यूज हर्बिसाइड्स, क्योंकि आसान नहीं होने जा रहा है पुरुष के लिए भी। ठीक है, ही मस्ट, लेखक कहते हैं, ही मस्ट extract the fruit of the land from thorns and thistles and eat his bread by the sweat of his brow। उट कटारे और जंगल भूमि में होंगे के मध्य उसको अपना घाम को, अपना पसीना को बहाते हुए, मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए परिवार के लिए जुटाना है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से 19 में हम इसको देख पाते। इन द एंड, और अंत की ओर, बोथ द मैन एंड द वुमन विल डाई। आखिरकार अंत की ओर दोनों ही जो है मारा जाएंगे संघर्ष को करते हुए। इन द क्लोजिंग वर्सेस ऑफ द 3rd चैप्टर ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के अध्याय 3 की अंत की ओर, God continues to provide for the human couple। परमेश्वर जुटाते जाते हैं, प्रोवाइड करते जाते हैं इस इंसानी कपल के लिए, क्लोथिंग देम, उनके लिए वस्त्र पहनाते हैं,
and more significantly predicting a time when the woman's seed, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से more significantly परमेश्वर क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, वो बताते हैं एक ऐसा समय के विषय में जब उस महिला से होकर कोई वंश, कोई बीज, कोई सीड आएंगे। वही है द प्रॉमिस्ड मसाया, वही है जो प्रतिज्ञा किया गया मसाया, मसीहा, जो उस सांप का, शैतान का सर को कुचलेंगे और मानव जाति को पाप से उद्धार प्रदान करेंगे। ठीक है। और इस पद को, उत्पत्ति अध्याय 3 के 15 के इस पद को जहाँ पे ये बताया गया है कि वो बीज आएंगे और उस सांप का सर को कुचलेंगे, इसे प्रोटो इवेंगेलियन कहा जाता है, यानी कि द गुड न्यूज, सुसमाचार इन सीड, उस बीज में होकर, इन सीड फॉर्म, यानी कि बीज के रूप में, ऑफ ए कमिंग डिसेंडेंट ऑफ द वुमन, महिला से होके वो वंशज जो आने वाले हैं, who would overcome the power of Satan over humanity, मानव जाति के ऊपर शैतान का जो क्षमता है उसको ओवरकम करने जा रहा है, उस पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। इन द मेन टाइम, और अभी इस समय, however the couple is expelled from the garden, इस वक्त उत्पत्ति में पाप के पतन के बाद आप देख पाएंगे कि इस विवाहित जोड़े को जो है उस बगीचा से एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे साइन। और ये बाहर निकाला जाना एक चिन्ह है, किस चीज का चिन्ह? that their rebellion against the creator had met with severe sanctions, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের যে বিদ্রোহ ছিল সেটা অনেক গম্ভীর প্রভাব নিয়ে এনেছে। that would cast an ominous shadow on their marriage during their sojourn on earth from the time onward, नर और नारी को, विवाहित जोड़े को एक्सपेल कर दिया गया है। और ये इस बात का चिन्ह है, এটা এই বিষয়ের চিহ্ন যে ওদের যে বিদ্রোহ ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, সে বিদ্রোহের পরিণাম স্বরূপ সিভিয়ার স্যাংশন, সিভিয়ার গম্ভীর অঞ্জাম চলে আসে, যেটার ফলস্বরূপ তাদের দাম্পত্য জীবনে, তাদের বিবাহিত জীবনে একটা নিরন্তর ছায়া পড়ে যেতে যাচ্ছে, ominous shadow on their marriage during their sojourn on earth from the time onward, সে সময় থেকে তাদের যে দাম্পত্য জীবনটা রয়েছে, এখান থেকে আমরা এটা দেখতে পারি যে তাদের দাম্পত্য জীবন অত সহজ হতে যাচ্ছে না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিণামে কোথাও না কোথাও তাদের সে সময় থেকে আসছে যে সময়গুলা, দাম্পত্য জীবন সহজ হতে যাচ্ছে না, এবং সে পরিণামগুলা তাদের উপর একটা ছায়ার মতন থেকে যেতে যাচ্ছে। তো আজকে আমরা এতটুকুই দেখি, এবং আরো যে বাকি অংশগুলো রয়েছে সেগুলোকে পরের বার দেখব। ধন্যবাদ।